How- we are just waiting for our one more participant, our panelist speaker. As soon she join, then we will start. Okay. Sure, ma'am. Sure, that's fine. That's fine. Okay. And this is also live streaming on the Facebook. Later on, we will share it on our Action for Impact channel as well. And we will also share on the YouTube as well. So if we don't have more audience, so they can see online over there. Okay. Sure, sure. Yes, we are waiting for you. Please join us. Gigi, please join us. We are waiting for you on the Zoom call. So we will wait for one more minute and then we will start. Okay, thank you so much, Dr. Ephraim, for joining us. As soon Dr. Taira join us, we will welcome her. This is our third webinar. Let me briefly introduce about to these webinar session that we are arranging. Basically, these webinar session is the part of our project that is called Parenting Matter for Tolerant Society. We are implementing this project from last 1 year, and we are working very closely with Christian, Hindu, and Muslim community in Islamabad and Rawalpindi. Our partner organization is also a Christian women-led organization that is called Weaving People to Grow Foundation. Miss Kiran Peter is leading that organization, and we are collaborating for this project activities. So basically, the purpose of these webinar session is to generate a discourse.
basically on the not only the parents role, but also for the society, for the government, for the different institution, that how can we can in Pakistan we can ensure the interfaith harmony. We can also reduce the incident related to the violent extremism, religious discrimination, religious bias, because in the country like Pakistan we see there are the lots of intolerance. I mean, there is a lot of discrimination exists for the different religion, because though we have a very less number of the minorities in Pakistan, we have 6 to 7%, but the thing is that we really want that this number should be increased. And in Pakistan, in the country like Pakistan, where the Qaid vision was that everybody live equally and equitably in this country. So this is the basically purpose for initiating this project at the different level. We have started with basically we conceptualized this project after the incident of the Jarawala, and that was the incident that was the biggest incident and the eye opening for everyone, because in this age, if we are having the incident like that, so this is something that's really we need to think upon it, that where we are lacking, what are the gaps that are still not filled, what are the things that we still need to work on, especially in this 21st century where we are in standing in 2025, where is there is a lot of education, where there is a lot of technology influence in the all around the globe, where the communication is very much accessible, where we talk about the issues at any level. So why we are having these kind of the incident, what kind of the hate element of hate that we still didn't overcome it, that we need to focus on the society that is most conducive and peaceful and tolerant and resilient toward each other. So the first two webinar we actually organized on especially on the this thing that what kind of the actions we can done, what kind of the scenarios we can do for ensuring the interfaith harmony, what kind of the role of society institution can play. So today topic is very much important, where we actually wanted to focus on analyzing the role of education institutions, especially the education sector in Pakistan. We know the education is having lots of problem in the country at the many level, but we see that the educational institution, there are the two basically foundations for the children and the young people in the Pakistan. First their home, the other is their educational institution. So when they first they need to be aware at the home that what kind of the role of the parents, that is what we are working, that parents need to be educated, they need to be very much focus on the accepting diversity, celebrating the diversity, accepting different religions. Parents need to be needs to influence their children in that way. And the other thing is the education. When they are going to the education institution, whether they are the children from the majority community, whether they are from the minority community, we also don't want to use the word minority, because we really wanted to say faith-based communities in Pakistan. So when those children go to the education institution, whatever they learn, it's not only they're learning from the books, but the whole environment from the school, whatever the things that they are learning from the school, that's really matter. So these are the things that we really wanted to discuss, that currently, especially in this age, what kind of the role our education institutions are playing, what kind of the syllabus we are teaching to our children, especially both the at the government schools, at the private school, and as well as in the missionary school, because we do have lots of the Christian community school as well. Then there is a larger number of the people go into the madrasas as well. So there is a lot of this is not a one kind of the flavor of the education in Pakistan, but the education in Pakistan is divided at the many levels. So we have the private sector, we have the public sector, then we have lots of the religious institutes as well. So these all things are influencing on our children at many levels. And these are the aspect that we really wanted to focus today, that although there was the basically efforts going on for the related to the single national curriculum, but those single national curriculum, we also see there is a lot of disparities, there is a lot of things that need to be sorted out. Then we have the school of the armed forces as well. So there's a lot of educational institute exist in this country. So this is some kind of the
initial few points that I really wanted to throw, and then I really would like to hear from my panel speaker. I highly welcome Ms. Taira Nemat, who is with us. Taira, we have started. We were waiting for you, and let me introduce both the panelists. We haven't done the introduction. Taira, I was just talking about that why we are having this webinar session, what is the main topic for today, and what kind of issue we wanted to highlight. And we really wanted to hear from your perspective as well. Okay, how can we further improve our education institution, the environment in the education institution, the overall education drive in Pakistan, which is at the many level, which is divided at many level into the various way that, as I am telling, in the private and the public, in the religious kind of the schools we have. Then we have the schools of the armed forces. I mean, there's a flurry of the education institution. So, let me introduce both of you. I will be having a brief introduction, but I really wanted to hear from you as well what you are doing when you were throwing light on the subject. So, our viewers will also get to know that what kind of the things that you are doing in society. So, we have Dr. Taira Nemat with us. Dr. Taira is the CEO of the FHDP, and she's also very much active on lots of interfaith harmony things. She's also connected with Ministry of Human Rights, I'm sure, because when she came into our training, she mentioned that other than that, she's doing lots of work for the society. We see her that she's very active on the many grounds. So thank you so much, Dr. Taira, for joining us today. Then our second panel speaker is Dr. Ibrahim, who joined us on a very short notice. Thank you so much, Dr. Ibrahim. He's the Deputy Director in the Medical Health Services. He's also a religious theologian and the human rights activist. So we would like to hear more from you, Dr. Ibrahim, when we are coming to you. So do introduce more about yourself, that what you are doing, and then the kind of the topic we are discussing. We would like to hear your perspective on that. So we'll start with Ms. Taira, if you allow, Dr. Ibrahim. So Taira, thank you so much for Sure, sure. joining us. Taira, you must be hearing that what topic that we are having today. So we would like to really hear from you. Basically, please first introduce yourself, and then do let us know. Like I will be asking few questions, and then we'll carry on the discussion in that way. So I really wanted to know, how do you see overall the education system in Pakistan? Because I was telling Dr. Ibrahim, there are the two main foundation for the children and the young people in the country. First is their home, where the parents, they can teach them about the tolerance, interfaith harmony, religious acceptance of the diversity. The other main foundation institution is their educational institution, where they are interacting with the different community, diverse community, where they're learning from their syllabus, where they're also having the kind of environment in the. So how do you see overall the educational system, though we know there are so many challenges and gaps in Pakistan? And what do you see, that what are the gaps that still exist, that they are still hindering us to ensure our basic objective, to ensure interfaith harmony, to promote the peace in the country, and to have lots of acceptance toward the other religion? So this is my first question to you. Please, we would like to hear from you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Here I'm Tanya Rehman, and ma'am, Natasha has introduced me, and I'm working. Currently, I'm working as a principal in the DSS school system, and also working in many organizations and institutions, private and publicly. So here we will discuss about the role of education or educational institutions, especially in promoting peace, interfaith harmony, and religious tolerance in the country. If we will talk about the Pakistan, in the context of Pakistan, the current state of education in Pakistan reflects a growing awareness of the need to promote peace, interfaith harmony, and religious tolerance. Though significant challenges remain. So, if we talk about educational reforms and initiatives, so in 2019, the Punjab government announced plans to introduce interfaith harmony as a subject in the colleges and universities, aiming to foster awareness and tolerance among youth towards different religions and sects. But unfortunately, we are lacking in this to implement.
So, organizations like the Pakistan Institute for Peace Studies, PAPES, have actively engaged over 700 university students across Pakistan in workshops focusing on interfaith dialogue, critical thinking, and understanding the challenges faced by religious minorities, and especially in Pakistan. So similarly, Payman Trust, this is a trust, has implemented an inclusive peace curriculum in selected private schools and madrasas in Peshawar since 2009. This curriculum emphasizes respect for diversity, social justice, and non-violence, bringing together students and from different educational streams to learn and act collaboratively. Uh, uh, collaboratively. So, if we talk about the gaps, so I think in the current state of curriculum, uh, mostly we see that most textbooks heavily emphasize Islamic teachings, often at the expense of other religions, even in secular subjects like history and social studies. And if we talk about the limited minority uh, representations, and then we will see that non-Muslim communities like Christian, Hindus, or Sikhs are often either omitted or portrayed through a lens of stereotypical thinking and marginal roles. So third one, I think the ideological tilt that some content fosters a narrow national narrative, occasionally presenting historical or religious differences in the uh, deviance or deviant term. So, if we will talk about the madrasa curriculum, many religions or religious seminaries still use traditional Darsin Islamic curriculum with little exposure to modern subjects or civic or ethical education. Moral lessons are usually tied only to Islamic perspective rather than universal human values and transcend faith. So, if we overall, if we look, that are the gaps are lack of interfaith education, and the second one is the absence of critical thinking. We are stereotypical. We have got stereotypical typical thinking, but not the critical thinking, and we are not promoting the critical thinking as well. One-dimensional history, one-sided things, Hmm. gender and religious biases Hmm. that are really um, uh, the basic thing which create the problems in the society. So, if we will talk about the textbook, so textbook often reflects patriarchal and mono-religious viewpoints and ignoring diverse voices. So, the next one, which I think that no emphasis on universal values. Hmm. We just talk about the divine things and our values, but not promoting the universal values. So the concept like empathy, tolerance, human dignity, and peaceful coexistence are not consistently embedded across the subjects. Yes, I think these are the very valid points. Basically, there are the gap existing that the syllabus is basically the lacking main thing, and then the syllabus is not balanced at all. Because when we were also reviewing the primary level syllabus for the Punjab curriculum, and then we see that the kind of the syllabus basically it's reflect for the one particular majority religion, but for the other religion there is no balance in the subject as well, whether it's not only limited to the Islamiyat, but all the if we see the English, Urdu, social studies, we also see geography, history, um,
in all those subjects we can see the reflection that there is no such balance in all that. And then we also don't see that at the educational institution level that there is lot of the kind of the environment, because there are the lots of religious festival. I mean, when we are talking about the accepting diversity, so there should be some kind of the acceptance for those, and people should celebrate those festivals in the and greet each other. I mean, we see there are the things coming on the Eids. Children are coming up with the cards and all that. But there are, when there are the some other religious, so there's the whole environment in the school. The syllabus is the main thing that can, and then there is a lot of division in the educational system. And then you were also mentioning that there is some kind of the policy related, derived related for inclusion of the interfaith harmony and the religious tolerance thing in the syllabus, but that is not implemented. So there is also lack at the policy and the that side. So थोड़ा सा डॉक्टर तायरा इसके ऊपर भी मजीद please let us know, and you can be comfort whatever the language you are comfortable, उर्दू में, इंग्लिश में, I have no issue, कि जो गवर्नमेंट का रोल है, आई मीन गवर्नमेंट, ऑल्दो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि गवर्नमेंट के साथ हम जितनी भी एडवोकेसी कर सकें, या वी आर डूइंग दैट, आई थिंक जो गवर्नमेंट को जितना भी ज्यादा इस चीज के ऊपर कि हम अपनी एजुकेशन को कितना इंक्लूसिव बना सकें, टू बिकॉज इट्स नॉट अबाउट टू फॉर द माइनॉरिटीज, फॉर द फेथ बेस्ड कम्युनिटी राइट्स, बट इट्स ऑल अबाउट for the vision that Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was having for this country. Because there, his 11 August speech, it was actually talks about that the everybody has to live freely. They are open to go to their temples, their churches, and everyone have the kind of not only the tolerance but also the acceptance for the religion. But the problem is this कि Dr. Taira, still we see every other day there's last day we again have the incident with the Ahmadi community. Then we also see lots of incidents related to the Hindu communities that they are having lots of, because there was the murder before the Eid for the Hindu community as well. And then in basically in the Muslim community, there's a lot of sectarian violences erupts at the different level. There is a lot of other, so the Christian community, Hindu community, Ahmadi community, lots of other faith-based communities are having lots of issues. So what do you suggest? Like how can we work with the government? How can all these communities come together? Although civil society is doing work, but still there's a lot of gaps you exist. So as being an expert on these things, so what do you suggest? That their policy exists, even sometimes our constitution contradicts the thing. So where we can, I mean, we are still lacking the minorities commission that was committed, but National Commission on the Minorities, I don't think so. The one-man commission is there, Dr. Shoaib Sadal is there, but the proper commission we can't see at the a certain level, although Ministry of Human Rights is doing work related to that. So what kind of the efforts we can create? So because these webinar sessions are not only that we just have the discussion, but we also wanted to know about the different steps that whosoever people are connected with us in those webinar sessions, so we make a force, we build a movement to address with the to talk to the relevant stakeholders to address those issues. So we just minimize the violent extremism in Pakistan. We try to give space to all the faith-based communities to have the tolerant kind of the to have the too much acceptance toward each other at every level, whether it's education institution, whether it's a community or society level. So please give us some valuable points that we can do to ensure a peace. That's very good. We have to discuss the things on the ground levels. You know, we always organize our workshops or seminars in the halls, in the hotels. But the thing is, where that is more important, that we have to work in the communities. And in the communities, we have to work, when we are going to work in the communities, we have to focus the educational institutes first. So here, if we talk about the role of government, so the government and educational institute in Pakistan can play a transformational role.
and building a more peaceful and cohesive society by working together and several key quarters. Uh, if you talk about the role of government in policies or reforms, then first of all, we should focus on our curriculum, what we are teaching, what we are giving the students, and how we are building their concepts and their mindsets towards the patience, towards tolerance, and towards the acceptance of others. So, curriculum reforms introduce inclusive content that promotes peace, pluralism, and empathy. And it can be remove hate speech or biased narratives from the textbooks. This is the possibility, and this is the role of the government that he should take the strict decisions about it. Ensure accurate representation of religious and ethical minorities. And the second thing, most important thing is we are going to organize the curriculum. We are just setting the norms. We are just giving the things, but how we are implementing. That is the only source is teacher. We have to train the teachers to handle diversity sensitively and promote critical thinking. Equip educators with the peace building and conflict resolution tools. If a teacher don't know how to resolve the things, or how to cater the things, or how to uh, 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 limit, give the limitations to the students about the hate material or hate talk, uh, then uh, the teacher can be the source only, or who can control the things and who can build the nation, I think. So policy oversight enforced laws against hate speech and religious discrimination in educational settings. This is really important and mandatory that we have to learn, that we have to teach our students how to tolerate other communities and other minorities also. The next thing is the support for interfaith programs. We usually we see that we don't want to listen anybody other else about the religion, or we follow usually we see that we follow the things. The example is I think मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी हिफ्स की. हिफ्स करवाते हैं बट ट्रांसलेशन Hmm. Hmm. Very हिफ्स important. करवाते हैं Hmm. बट ट्रांसलेशन Hmm. they don't know what they are learning, और वो क्या पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता. Hmm. और हर कोई जो भी है हमारे रिलीजियस रहनुमा, वो क्या करते हैं कि वो अपने तौर पे उसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, अपने तौर पे तफसीर दे रहे होते हैं. हर बंदे की अपनी तफसीर अलग होती है, अपनी अपनी उसके मुताबिक. सो here we can promote the education of madrasa teachers or Maulvi Hasrat or pastors also. Uh, I have given a recommendation to the government when Mr. Kakar was the Prime Minister. I put it my file to him and said that these are the things. If we are hiring a teacher or anybody in any institute, we selected the criteria that the education, the age, the experience, and this is the criteria of XYZ, whatever the job is. So why we are not giving the criteria in to hiring a priest or a mullah or Maulvi or any other hierarchy, any other person for the religious teaching. तो मैंने वहां पे रिकमेंड किया कि काइंडली इस चीज को देखा जाए, बिकॉज इफ दे पीपल आर literate, they people are understanding what they are doing, what they are promoting, then we will I think we will make the peaceful environment or community as well. So these are the things which we have done and which we have to do. बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोग जो है वो कर भी रहे हैं.
सो जहाँ पर इसका इंस्टीट्यूशन की जो रोल है उसको अगर हम देखें तो हमें डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। अपने बच्चों के अंदर टॉलरेंस पैदा करनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए दैट एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम बाय बर्थ। इफ वी हैव अ हैंड, so we have the impression of fingers different. Even then, if we are siblings, we have the different identity. हमारी अपनी शिनाख्त है। आई हैव माई ओन स्ट्रॉन्ग थिंग्स, आई हैव माई ओन पर्सनैलिटी। हर बंदी का जो है वो डिफरेंट है। तो हम अगर अपने बहन भाइयों को इस डिफरेंस के साथ कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट द अदर थिंग, अदर पीपल ऑल्सो इन द कम्युनिटीज। सो दिस इज द थिंग, and the government's role is very very important. Or but we have so many pressures in the government. If we talk about them, तो हमारे पास जो रिलीजियस जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। उसमें यह है कि हम उससे इतने रिजिड हैं कि हम उससे लाइन से बाहर ही नहीं निकल सकते, निकलना ही नहीं चाहते, या हमें ऐसी फोर्सेस हैं, अनसीन फोर्सेस हैं जो निकलने ही देना नहीं चाहती। तो इस वजह से जो है वो हम एक समझे जाते हैं कि दैट वी आर एक्सट्रीमिस्ट। Hmm. Thank you so much. I think very valid points. And yes, there is a lot of gaps exist at the government level. There is a lot of influence from the one religion at the many level. I think in the state like Pakistan, there shouldn't be fear like that. If we are, for the one religion, that if we don't talk about that, then the people know it shouldn't be like that. And that I think we need to be balanced about the religious preaching at all levels. So all the communities, faith-based communities, learn that there is every religion should be respected, and every religion should teach peace. Every religion talks about the peace. No religion wants war. No religion talks about the hate. No religion talks about the discrimination at any level. There is no voice because everybody, it's religion is all about faith, and people are connected with their faith with every religion. And I think there should, and that's what our religious leader, I think the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, he also have the kind of lots of acceptance toward the religion even. एग्जाम्पल। And I truly agree with your point of view related to the hifz, that when I also read the translation of the Quran, and in the entire Quran I didn't, there were the few verses where I actually a little bit disagree with, but the other all there I haven't seen anything that there is that it is a very congested kind of the religion. It talks about religious extremism. No, it is a very peaceful kind of the religion. And it has a lot of there's a lot of broadness, and people, I don't think so that they are, most of the time we don't have the good scholar who actually interpret our own religion in a proper way. So these are the gaps that exist everywhere. And yes, there are the curriculum level gaps, there are the lots of government level policies that the thing is there. And then there is even in the constitution, if we see article 22 say that we can't force any religious teaching to any other community and all that, that everybody has the right to exercise their religion in the proper way. So we are also violating those constitutional rights at the many ground as well. So now we go to the Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim, thank you so much. We really want you to introduce about yourself, that what kind of the work you are doing, and then we will further talk about the issue you heard about from the Tyra as well. I was also highlighting some of the issues. So we really wanted to know about your perspective, that what kind of the challenge you see in overall the system, in the education system, and especially the lack of implementation at the government role, basically which is creating the hindrance के हम उस तरह से इक्विटेबल एजुकेशन को इंश्योर ना कर सकें, पीसफुल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को कंट्री में इंश्योर करने के लिए जो हिंड्रेंसेस हमें नजर आ रही हैं एट ऑल द टाइम. सो प्लीज आइडेंटिफाई दोज challenges and also speak about the role of education institution, overall role of the society. So these are the two questions I would like to ask first, and later we will talk about the different steps and the policy level changes and what can be done more for the society. So these are the two questions, but first I really want that you must introduce yourself to your all of our participants who are watching us online. So, Ji, Dr. Ephraim.
So, good morning, everyone. Assalamu alaikum, namaste, and sat sri akal. Starting with the name of Jesus Christ, who was born through the Virgin Mary. Let me just introduce myself to you. मेरी आवाज तो आ रही होगी, right? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. Yes, we can hear you. I'm a religious theologian, a doctor by profession, a member of Pakistan Psychiatric Society. I'm a member of United Nations Human Rights Council, Geneva, and a member of Interfaith Synod, Vatican City. So, ma'am, आपने जो क्वेश्चन मेरे से किया है, आई वुड लाइक टू आंसर दोस, बट उससे पहले मुझे मिस ताहिरा के एक सवाल का जवाब देना है. सवाल का जवाब नहीं, आई वुड लाइक टू करेक्ट सम थिंग्स. जैसे मिस ताहिरा कह रही थी कि हमारे जितने रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना, किसी भी रिलीजन को, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए. रिलीजियस ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी सोशल ट्रेनिंग और हमारी जो सोसाइटी ट्रेनिंग है वो भी, ठीक है. हम अगर मैं दूसरे किसी रिलीजन को या डिनोमिनेशन को टच नहीं कर रहा, ठीक है. आई एम जस्ट कंसिडरिंग कैथलिक डिनोमिनेशन. कैथलिक डिनोमिनेशन के जितने भी प्रीस्ट होते हैं या नन्स होती हैं, दे गो थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जिसमें उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी रिलीजियस थियोलॉजी, उनकी रिलीजियस फिलॉसफी, उसके बाद उनका एजुकेशन जो है, हमारी जो जनरल एजुकेशन है, ठीक है, उसके साथ साथ उनकी रिलीजियस एजुकेशन करके वो प्रीस्ट बनते हैं, ठीक है. हमारी सोसाइटी में जो इशू क्रिएट होता है वो होता है हमारे जो डिफरेंट डिनोमिनेशंस, रिलीजियस डिनोमिनेशंस, हमारी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं, उनके जो पास्टर्स आते हैं. अब हमारे कुछ डिनोमिनेशंस ऐसी हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन में चर्च ऑफ पाकिस्तान हो गया, प्रेस्बिटेरियन चर्च हो गया. अब इनके जो प्रीस्ट है ना, दे आल्सो गो थ्रू रिलीजियस टीचिंग और सारी एजुकेशन सिस्टम के साथ पढ़ के, वो सेमिनरी करके, वो जो है वो एक वहां होता है जहां पे हमारे ये छोटे चर्च क्रिएट हो रहा है. वहां पे अब किसी बंदे ने ही इज नॉट he has not completed the matriculation or like he's a pastor. Yes, I was जिसने actually अपनी talking about this. जनरल, हाँ, मुझे समझ आ गई थी आपकी बात की, ठीक है. अब इशू वहां पे है जहां पे हमारे पास ना हमारी जनरल एजुकेशन है. मैट्रिक इज द बेसिक एजुकेशन है जो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए. आपकी वो एजुकेशन भी नहीं है और आप एक रिलीजियस स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं. और मोस्टली रिलीजियस स्कॉलर्स मिस मैंने देखे हैं जो कि हमारे टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, Exactly. जनरल हमारे नेशनल टेलीविजन. सिर्फ रीजन क्या है कि उनकी किसी के साथ जो है वो टीवी टेलीविजन में या फिर किसी भी बड़े चैनल में उनकी सलाम दुआ है किसी बंदे के साथ, और वो उनको इनवाइट कर लेते हैं प्रोग्राम्स में. अब वहां भी इशू क्या आता है कि उनको ना तो जनरल एजुकेशन ना रिलीजियस एजुकेशन, उनके दिल में जो आएगा वो बोलेंगे. और वहां से जो है हमारे वो जो एक्सट्रीमिज्म का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, जैसे आपने कहा जड़ावाला वाला वाकया जो हुआ, वो छोटी सी कोई बात होगी वहां पे, पर उसको इतना बड़ा रंग दे दिएगा. और उसके पीछे रीजन सिर्फ ये होगा कि जो कोई जो प्रॉपरली तालीम याफ्ता पास्टर हो ना होगा, उसने कुछ ना कुछ बात कर दी होगी. आई एम नॉट टारगेटिंग एवरी पास्टर, सॉरी फॉर दैट, लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर, ठीक है. आई एम नॉट टारगेटिंग एवरी पास्टर, बट आई एम टारगेटिंग दैट कम्युनिटी जो कि अपनी जनरल एजुकेशन कंप्लीट किए बगैर जो है वो पास्टर है. और उसके बाद वो जो है रिलीजन का एक बहुत ही अजीब सा रंग जो है ना, अजीब सी तालीम वो लोगों को दे रहे हैं, ठीक है. हमें सबसे पहले तो मुझे अच्छी तरह याद है गवर्नमेंट ने जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि हमारे जितने ये कॉलोनी बेस्ड चर्चेस हैं इन सबको बंद कर दिया जाए. बट उसके बाद भी कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है. तो मेरी गवर्नमेंट से अभी यही फाइल अपील हमने दी होगी. थी, वो जी भी रिक्वेस्ट फाइल हमने ही गवर्नमेंट को जो वो दी थी, बिल्कुल बिकॉज आई बिल्कुल, एम नॉट आई पार्ट आई ऑफ स्टिल गवर्नमेंट. रिमेंबर दैट कि मिस क्योंकि सबसे जिसको बड़ा रिजेक्ट कर जो दिया गया. हमारे, बिल्कुल हमारे जितने भी आज तक ब्लेसफेमी के वाकये हुए हैं पाकिस्तान में, जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड वाकये हैं, वो मोस्टली इसी तरह की छोटी कॉलोनी बेस्ड चर्चेस से आए हैं. एग्जैक्टली. कभी भी हमने सुना हो कि हमारे जितने बड़े चर्चेस हैं, जिनमें रोमन कैथोलिक चर्च आ गया, चर्च ऑफ पाकिस्तान आ गया, या चर्च ऑफ इंग्लैंड आ गया, एंजेलिकन चर्च आ गया, या प्रेस्बिटेरियन चर्च आ गया, वहां से कोई ऐसी बात निकली हो
कभी भी नहीं। हम्म। हमेशा ये इश्यूज क्रिएट होते हैं हमारे छोटे जो कॉलोनी बेस्ड चर्चेस हैं, जिनमें एक कॉलोनी में 300 घर हैं बट वहां पे 20 चर्चेस होंगे। 20 नहीं, ज्यादा, 35। 20 से ज्यादा, बिल्कुल 20 से अभी ज्यादा। जो मैं वो रिसेंट आपको हमने जनरल सर्वे छोटी कराया उसमें छोटी कॉलोनी की देयर बात वर बता रहा हूँ। 35 चर्चेस। बिल्कुल। तो अभी इन चीजों को जो है ना वो देखने की जरूरत है कि हमें, अगर हम एजुकेशन पे काम करना चाह रहे हैं, रिलीजियस बेस्ड सोसाइटीज के साथ काम करना चाह रहे हैं, हम उनको एक प्रॉपर एक वॉक ऑफ लाइफ में लाना चाह रहे हैं, तो हमें इन चीजों को भी देखना है कि अपने मफाद से इनको हट कर, हमारे जितने भी पास्टर्स या प्रीस्ट हैं, अपने मफाद से हट कर हमें अब कम्युनिटी के बारे में सोचना है। हमारा मफाद का टाइम चला गया, हमें अब कम्युनिटी के बारे में सोचना है, क्योंकि कम्युनिटी अब इतनी जो है ना वो कमजोर हो चुकी है कि हमें उसे दोबारा पैरों पे खड़ा करना है। और ये सारी कम्युनिटीज के बारे में है, क्या वो इस मुस्लिम है, क्या वो क्रिश्चियन है, क्या वो हिंदू है, क्या वो सिख है, क्या वो बहाई कम्युनिटी है, क्या वो पारसी कम्युनिटी है। हमारे सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको सिर्फ अब ये सोचना है कि हमें अपनी कम्युनिटीज को फोकस करना है और अपनी कम्युनिटीज को किस तरह से हमने दोबारा से स्टैंड करना है, और फिर उसके बाद जो है हम बाकी चीजों पे काम कर सकते हैं। Until and unless our communities are not strong enough, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे ये वेबिनार्स, हमारे ये सेमिनार्स, हमारी ये पीस वॉक्स कुछ भी नहीं करेंगे जब तक हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं बड़े, वो जब तक खुद जो है वो स्टैंड नहीं लेंगे। और जहां तक मैं आपके क्वेश्चन की डॉक्टर, बात मैं थी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी, और मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रही थी वो ये था कि हमारे क्लर्सी लीडर्स जो है उनका एजुकेट होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बस दिस प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग इन आवर कम्युनिटीज। जैसा आपने कहा कि जो स्मॉल जो चर्चेज है वहां से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हमारा ये इस चीज को एक रिकमेंडेशन देना कि एक प्रीस्ट को जो है वो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और उसका पर्पस यही था कि जो अंडर मैट्रिक होगा वो तो उसमें से निकल जाएगा, मिनिमम ग्रेजुएशन हो उस बंदे की, उसको पढ़ना लिखना अच्छे से उसको समझ हो। एग्जैक्टली। देखिए, आई वाज टॉकिंग अबाउट ओवरऑल थिंग्स, और जो बेसिक ग्राउंड रियलिटी है मैं उसकी बात कर रही थी। आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटेन्ड और जितने भी हमारे ये बड़े बड़े चर्चेज हैं, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। और इसी साथ सिर्फ खाली मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात नहीं कर रही, आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द मौलवी हजरात, मुल्लाज। मैं इनके बारे में, अभी मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ। व्हेन आई वाज टेकिंग द एमफिल क्लास, वहाँ पे रिसर्च की बात चल रही थी, तो उसमें ये क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज द रियल नॉलेज एंड वेयर फ्रॉम इट कम्स। तो एक बंदी ने स्ट्रेट ये कहा कि हमारे लिए तो डिवाइन जोन सा है ना, वही जो है वो अथेंटिक नॉलेज है, वही सब कुछ है। देन आई रेज द क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द नॉन बिलीवर्स? वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल, हम यूनिवर्सल रिसर्च की बात कर रहे हैं। सो हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचना है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं वो क्या सोचते हैं। डिवाइन लॉस तो हमारे पास है, डिवाइन बुक तो हमारे पास है, वी आर फॉलोइंग देम, बट व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द लॉस। तो ये था कि ओवरऑल मैं ये बात कर रही थी कि जो हमारे जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उनको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग होना जरूरी है, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, पीस को प्रमोट कर सकें। और जब वो बोलेंगे पुलपट से, जो भी वो बात करेंगे, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल होती है और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट। Thank you so much. Thank you so much, सॉरी। Tyra. Now, Dr. Ibrahim, now you can also come up with the question answer as well that we were also. श्योर Yeah, yeah. श्योर। मैं आपका जो क्वेश्चन था ना कि हमारे चैलेंजेस क्या है करंट एजुकेशन सिस्टम में, मैं उसके लिए सबसे पहले तो द थिंग इज द करंट एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान फेसेस सेवरल challenges that hinder equitable education for all faith-based communities. Some key issues including are uneven education framework, lack of funding, diverse medium of institutions, socio-economic divide, inequality in education, cultural and religious divide, outdated teaching method। अब अब सिचुएशन ये है कि ये जो हमारे 5 से 6 पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पे हमने काम करना है, उन पॉइंट्स पे काम करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम की हमें जरूरत नहीं है।
हमें अपने अपने जो हमारा सिस्टम है, जिस भी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम में हम रह रहे हैं, या हमारे आसपास के जो जिन स्कूल्स के साथ हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, जैसे मिस ताहिरा है, शी इज एक्टिंग प्रिंसिपल नाउ। तो मिस ताहिरा के जो अंडर जो स्कूल या कॉलेजेस आ रहे हैं, मिस ताहिरा वहां पे जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं, राइट। मेरे अंडर जो स्कूल्स आ रहे हैं, मैं उन स्कूल्स में अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। अगर हम ये कहें ना कि हम बड़े लेवल पे जाके फौरन काम करना, तो बड़े लेवल पे जाके काम करना फौरन थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो सिचुएशन इज दिस कि हमें इनइक्वालिटी इन एजुकेशन जो है ना, उसको सबसे पहले फोकस करना, कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी हर चैलेंजेस, जितने भी हमारे चैलेंजेस ऑल ओवर द, अभी हम जिनको डिस्कस कर रहे हैं, उन सारे चैलेंजेस में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इन इनइक्वालिटी इन एजुकेशन है, कि हमारी एजुकेशन जो है वो कभी भी बेस्ड रियल बेस्ड थी ही नहीं। और हमने जो भी रीजन या जेंडर या अनएम्प्लॉयमेंट के तरीके से हमने जो भी एजुकेशन को फोकस किया, हमने जो भी चीजें जो है वो उस हिसाब से बनाई, उन सारी चीजों को हमने कभी जो है उस तरीके से देखा ही नहीं। अब इक्विटेबल एजुकेशन जो है हमारे पास ये होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल, अगर तो वहां पे हमारे स्कूल में कोई, मोस्टली हमारे मिशनरी स्कूल में तो अब सिचुएशन ये है ना कि जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो कैटेकिज्म पढ़ेंगे, मुस्लिम बच्चे जो हैं दे विल गो फॉर द इस्लामियात, और जो बाकी बच्चे हैं दे विल गो फॉर द एथिक्स। ठीक है। अब मोस्टली हमारे मुस्लिम स्कूल्स में इशू कुछ यूं होता है कि हम ज्यादातर जो है वो बच्चे जो है इखलाकियात भी बहुत कम पढ़ते हैं, वहां पे ज्यादातर फोकस बच्चों पे किया जाता है कि यू हैव टू स्टडी द इस्लामिया, जो कि कंपलसरी है। ठीक है। इस्लामियात पढ़ने से मसला कोई भी नहीं है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो रिलीजियस बुक, और उससे एजुकेशन लेना हमारा हक भी है और हमारा फर्ज भी है। ठीक है। क्योंकि हर रिलीजन की नॉलेज होना आपके पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई रिलीजियस नॉलेज नहीं होगी किसी भी रिलीजन की, तो आपके इश्यूज ही क्रिएट होते रहेंगे, आपके उनसे किसी ना किसी बात पे क्लैश ही होता रहेगा। बट सिचुएशन ये है, क्योंकि आपने मैट्रिक में तो कंपलसरी कर दी, 9th एंड 10th में, तो उसके बाद आपने जो हमारा आगे के फर्दर एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो भी हमारी डिग्री है, उसमें भी आपने उसको जो है वो कर दिया है। बट जो बच्चा छोटा है और उसको, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट शेयर थिंग विद यू। हमारे एक जानने वाले हैं और उनका एक छोटा बच्चा है, उसको अरबी पढ़नी नहीं आती। ही इज ए क्रिश्चियन बच्चा, अरबी कहाँ से पढ़नी आएगी, अरबी मुश्किल है उनके लिए पढ़ना और समझना। ठीक है। उसको सिर्फ फेल इसलिए कर दिया गया कि सर आपने जो ओरल टेस्ट था वो आपने अरबी नहीं पढ़ के हमें सुनाई, दैट वाज अ सूरा, और आपने मुझे हमें पढ़ के नहीं बताई। एंड ही वाज इन क्लास 5। हम्म एक वो ना छोटी क्लास का बच्चा हो, हम्म So तो that वो जो shouldn't be हम done. That should इनइक्वालिटी, practice, that practice shouldn't be done, हाँ. तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर तो हम छोटी आप स्कूल्स में अब हमारे मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो ये हमारे पास ना फैसिलिटी नहीं होती कि हम कोई भी रिलीजियस टीचर हायर कर सकें फॉर डिफरेंट फेथ कम्युनिटीज। तो वो एक ही बंदा होता है जो मीन्स के इस्लामियात भी पढ़ा रहा है, इखलाकियात भी पढ़ा रहा है, और मीन्स के वो अगर इखलाकियात की बुक में जो है वो फॉर एग्जांपल डिफरेंट किसी रिलीजन की कोई चैप्टर आ गया है, तो ही विल बी फोकसिंग दैट चैप्टर अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज। वो बच्चों को अपनी नॉलेज के मुताबिक पढ़ा रहा होगा। तो हमारे पास ये है कि हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में मोस्टली जो है फेस बेस्ड टीचर जो है उनको हायर करना चाहिए फॉर लाइक इखलाकियात और फॉर देयर रिलीजन स्टडीज। क्योंकि हम जो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, कि जो कि सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। बाकी तो हमारा कोई चैलेंज इतना नहीं है, ठीक है, हमारे पास फंडिंग भी कम होती है बच्चों के लिए, और मोस्टली हमारे जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज है, इनके हालात भी इतने अच्छे नहीं होते कि बड़े स्कूलों में ज्यादातर पढ़ा सकें। वो मीन्स के हमारी मोस्टली 80% कम्युनिटी ऐसी है जो कि लाइक ग्रास रूट लेवल पे है, अच्छे स्कूलों में नहीं, फिर तो लैक ऑफ फंडिंग का भी इशू है हमारे पास। बट जो हमारा मेजर इशू है वो कल्चरल और रिलीजियस डिवाइड है, और उसके बाद जो हमारा जो है वो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद में से हम लोग अगर बात करें कि हम अपनी सोसाइटी में अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, मीन्स के बीइंग अ पर्सन, बीइंग एक्टिविस्ट, हम अपनी सोसाइटी में अपना रोल या कंट्री में अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो वो उसके पीछे दैट वुड बी promoting interfaith understandings, inclusive curriculum, celebrating diversity, creating safe spaces, teacher trainings,
encouraging critical thinking, fostering empathy and respect, addressing stereotypes and biases, building community partnerships, modeling inclusive values. By these, by taking these steps, education institutes can help create a socially just country where children from all faith-based communities can openly discuss their religion, celebrate diversity, and develop a deeper understanding and acceptance of others. तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग कम्युनिटी पार्टनरशिप्स, partnering with local faith-based communities and organizing to promote understanding, respect and cooperation. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्कूल में कोई एक भी हिंदू बच्चा है ना, या स्कूल में हमारे पास कोई एक भी क्रिश्चियन बच्चा है, तो वी कैन सेलिब्रेट क्रिसमस विद द पर्सन, वी कैन सेलिब्रेट ईस्टर विद द पर्सन. और अगर हमारे पास स्कूल में एक भी हिंदू बच्चा है तो हम कुछ ऐसा कोई प्लान कर सकें कि उस बच्चे के साथ हम होली सेलिब्रेट कर लें, ताकि उसको जो है ना वो लेफ्ट आउट फील ना हो. क्योंकि हमारे पास मोस्टली है ना, हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, हम 12 रबीउल अव्वल स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, हमारे मोस्टली जो स्कूल्स हैं. पर अगर उसी स्कूल में जो है वो हमारे फेथ बेस्ड कम्युनिटीज भी पढ़ रही हैं, तो वहां पे फेथ बेस्ड कम्युनिटीज के लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल हॉलीडे, until and unless गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ना दे. तो मिस ताहिरा, आई होप आप इस बात से एग्री करेंगी. नो मैं इस बात से एग्री कर रही हूँ, बिकॉज ईस्टर डे जब आया तो हमें कोई मतलब वो उसमें नहीं होता कि लोकल जो है वो छुट्टी हो कोई भी, बट ये होता कि आपको अगर किसी को पता है कि आपकी पॉलिसी के अंदर कोई गवर्नमेंट ने आपको ऑफिशियल छुट्टी दे रखी है, तो जो है वो लोग उनको ईस्टर मंडे की छुट्टी देते हैं. अदरवाइज लोकल जो स्कूल्स हैं, पब्लिक ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे लोगों को कोई छुट्टी नहीं दी जाती. नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है. हाँ, that is a very important point, and that is what I really wanted to थोड़ा इसके ऊपर के जो हमारी डिफरेंट रिलीजियस की सेलिब्रेशन है. बेसिकली ईद के ऊपर हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, बट वी रियली वांट क्रिसमस के ऊपर सिर्फ एक क्रिसमस भी वो कायद डे होता है, तो उसकी वजह से वो उसको बेसिकली, बट वी रियली वांट कि बाकी जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हिंदू कम्युनिटी के हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, देन वी हैव द अदर कम्युनिटीज, उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं, सो देयर शुड बी द प्रॉपर हॉलीडेज फॉर दैट. एंड inshallah we are going to have a meeting with the minister साहब, and we are also going to highlight this point in front of him, because फिर लोगों को थोड़ा सा बेसिकली द बच्चों में एंड द यंग जनरेशन में ये थोड़ी चीज आए कि देयर आर द अदर रिलीजन एग्जिस्ट इन द कंट्री, एंड दोज रिलीजन नीड्स टू बी एक्सेप्टेड एंड दैट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड इन दैट वे, कि जब ये प्रॉपर हॉलीडेज अनाउंस होंगी उनकी सेलिब्रेशन के लिए, सो पीपल हैव द काइंड ऑफ द अवेयरनेस, एंड ऑल्सो दे need to know कि okay, so there is a lot of respect for the other religion that's need to be celebrated in a many ways. So एक और चीज जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूंगी और हम मजीद आगे भी बढ़ेंगे, कि एक तो आपने बात की कि रिलीजियस लीडर का भी, आपने अपनी क्रिश्चियनिटी में भी जो चैलेंजेस नजर आ रहे हैं पास्टर के प्रीड्स के आपने हाईलाइट किए. सिमिलरली वी आर फेसिंग द सेम इश्यूज विद आर जो रिलीजियस लीडर हैं, जो हमारे मौलाना हजरात हैं, बहुत सारी चीज, क्योंकि मैं भी यही कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग, इवन दे डोंट अंडरस्टैंड द कुरान ट्रांसलेशन इन अ वे, और फिर उसको इंटरप्रेट करने का कि वो किस तरह से एक पीसफुल मजहब था, द हॉली प्रॉफिट लाइफ वाज. इवन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अपने बच्चों को ये समझाने में कि उस टाइम पे जो वॉर्स हुई थी उनका क्या मतलब था, बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड टू लर्न मोर फ्रॉम दैट इफ द इस्लाम इज द religion of the peace, so why there were the wars, why there were the fights that time. So we need to make them understand that what was the reason behind those fights. But now if we want to have a peaceful world, we shouldn't go for the war on the name of the religion. So although there are so many wars going on in the world related to those religious differences in the perspective. So एक और चीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे या हमारी गवर्नमेंट का रोल जहाँ पे हम हमारे प्राइवेट स्कूल वैसे तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर विजिट्स अरेंज कराते हैं, बट मैंने नहीं देखा कि कोई उन्होंने चर्चेस में अरेंज कराया हो, कोई उन्होंने मंदिर में अरेंज कराया हो, कि वे जहाँ पे जाके वो डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में लर्न कर सकें बच्चे, उनको
थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि उन कम्युनिटीज के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, लर्न अबाउट देयर रिलीजन। तो हमारे पास वो एफर्ट्स भी नहीं है एज अ कंट्री कि वो जो कायद का विजन था, जो एक सेकुलर पाकिस्तान, जो एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे हर रिलीजियस कम्युनिटी आज़ादी से रहे, एक दूसरे के बारे में जाने, एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, तो वो चीज़ें भी हमारे बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लैक करती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि डॉक्टर इफ्राहिम आप बात कर रहे थे कि दीज वेबिनार्स, बट इन वेबिनार से चीजें निकलकर जब हम अपने स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे तो हम ये चीजें उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, हम मजीद इन चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं कि हम कौन से पॉलिसी लेवल डायरेक्टिव्स लेकर आएं। और जब हमारी अभी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग होती है, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू कि वी गो टुगेदर एंड वी टॉक टू हिम। सो दीज आर द पर्सपेक्टिव, आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट्स वी डिस्कस टुडे। So now I really wanted to like both of my panelists, डॉक्टर इफ्राहिम से पहले, और फिर मैं चाहूंगी कि तायरा भी उसको ऐड करें और फिर हम उसको कंक्लूड भी करें कि हमने अब चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, अब हम ये चाहते हैं कि अब क्या स्टेप्स लें। मतलब हर लेवल पे हम स्टेप्स बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के लेवल पे भी कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लेवल पे भी कर रहे हैं, पेरेंट्स का भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे भी। सो व्हाट काइंड ऑफ द स्टेप्स, व्हाट काइंड ऑफ द पॉलिसी लेवल चेंजेस दैट वी नीडेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी राइट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म्स हैं कि अब हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आई मीन हमने घरों से तो स्टार्ट करना है, बट आई थिंक कि बहुत सारी चीजें हैं। वी ऑल्सो मेट योर एक्री बिशप जो जोसेफ हैं, उनसे मेरी अभी मैं कंडोलेंस के लिए गई थी पोप फ्रांसिस के लिए, सो आई ऑल्सो मेट हिम एंड ही इज ऑल्सो वेरी मच कंसर्न, ही इज वेरी लाइक we need to work with the parents, we need to work on the education, we need to teach peace and tolerance to all the communities. So now you need to tell me कि हम किस तरह से ये चीजें अब इनको कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट ऑन द एजुकेशन, आई मीन बहुत सारी हेल्थ पे काम कर रहे हैं डॉक्टर इफ्राहिम, आप उस पे भी देख रहे होंगे कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन है फॉर द अदर कम्युनिटीज, अवेयरनेस नहीं है। अब हेल्थ के राइट से भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ पे पेरेंटिंग की जब हम बात करें तो मेटर्नल हेल्थ की बड़ी बात करते हैं, until the mother is not well psychologically or physically, she can't give the proper upbringing to the child to the level, because mother की nutritional deficiencies बहुत हैं, psychologically वो बड़ी challenge होती है because हमारा माशरा इस तरह का है कि there is a lot of pressure on it. So please इन चीज़ों को थोड़ा सा highlight कीजिएगा कि अब क्या steps, मतलब कैसे हम मजीद इस inclusive education के ऊपर अपनी सोसाइटी को मजीद वो जो कहते हैं ना वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए, so what kind of the role, I mean, everywhere we can play? Okay, ma'am, to achieve equitable education related to all religion, consider the following steps. ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन लेवल में हम लोगों को जो चीजें जरूरत है, दैट इज इंक्लूसिव करिकुलम, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग और एड्रेसिंग मार्जिनलाइजेशन। उसके बाद अगर वी गो फॉर द मिडिल एजुकेशन लेवल, वी कैन गो फॉर द इंटरफेथ डायलॉग्स, critical thinking, diverse representation. We can go for the higher education level as well, like comparative religious studies, research opportunities, inclusive campus environment. और अगर इसके बाद हम जाएं additional recommendation पे, तो that would be teachers training, community engagement, policy department. By implementing these steps, educational institutes can promote equitable education related to all religion, fostering a culture of understanding, respect and empathy among students. हमें I was also working with different schools as a Diocese Board of Education, with the Diocese Board of Education. तो हमने अपने schools में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने तौर पे जो है आपने जिक्र किया, His Grace Archbishop Dr. Joseph Urshad का, he's the chairman for the Diocese Board of Education. तो उनकी तरफ से भी कुछ चीजें जो हैं वो हमें बताई गई हैं कि आपने इन इन तरीके से जो है वो रिलीजियस लेवल पे या फिर कम्युनिटी लेवल पे आपने स्कूल्स में जो है ना वो स्टेप्स लेने हैं, जिसकी वजह से आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या आपकी सोशली या सोसाइटी जो है वो बेटर हो सकती है। तो वी आर टेकिंग दीज स्टेप्स, और आई वुड लाइक कि आप लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट स्कूल्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में जो हैं वो अगर इन्हीं लेवल्स को लेके चलेंगे तो आई नो एंड आई कि ये चीजें जो हैं ये बेटर हो जाएंगी।
और इन स्टेप्स के थ्रू हमें और भी चीजें करनी पड़ेंगी, बट दीज आर द बेसिक स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके जो है वो अपनी एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन जो है उसको जो है वो हम कुछ अच्छे पॉइंट पे जो है ना लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, मैं इनकी ही बात को सेकंड करते हुए जो है वो अपनी कुछ जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन का रोल है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो जो है उसको एक स्पेसिफिकली डिजाइन करना चाहिए कि हम किस तरह से हाउ टू प्रमोट द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। सो फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस एंड हार्मनी, we have to promote diversity and inclusion. And second one is the peace education as a subject. We can teach the peace education as a subject. अभी तक हमारे पास ऐसा एज अ सब्जेक्ट इसको नहीं लिया गया, बट जिस तरह से हम दीनियात पढ़ते रहे, उसके अंदर डिफरेंट मज़ाहब का जिक्र होता रहा, इसी तरह से इस्लामियात का सब्जेक्ट है, तो सो वी हैव टू टेक पीस एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट. And the next thing is engage parents and communities. We just focus on the students, teachers, but usually we ignore the parents. You know, education has a triangle. One on the triangles, one side is the student, the other on the other side is teacher or institute, and the third one is the part of the parents. So when we ignore them या उनको हम engage नहीं करते, तो हम अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हो पाते. So if education has a triangle, so we have to follow that triangle as well. और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि पोस्ट क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना बहुत जरूरी है. बच्चों को बताएंगे प्लीज अब थिंक अबाउट द थिंग्स इन योर पर्सपेक्टिव. अपनी आंख से देखो और खुद से लिखो, क्रिएटिव की तरफ जाओ और क्रिटिकल थिंकिंग करो कि क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, और हम क्या सोचते हैं और हमें क्या जो है वो सीखना चाहिए. इसके साथ ही है कि आप जो है वो मीडिया को एंगेज कर सकते हैं, मीडिया पे जो है प्रमोशंस ला सकते हैं, मीडिया के थ्रू हम जो वो पीस को जो प्रमोट कर सकते हैं. और फिर इसके साथ जैसे आपने ये कहा कि हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उन्हीं की जो है वो कुछ जगहों पे छुट्टियां नहीं होती. हिंदू का क्या चल रहा है हमें नहीं पता, क्रिश्चियन का क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता, मतलब मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी को नहीं पता होता. लेकिन इनको बताना चाहिए. और फिर यह है कि हमें इंटरफेथ हार्मनी डेज रखने चाहिए जिनको सेलिब्रेट करना जरूरी है. उससे भी हम अपने बच्चों को जो है वो चेंज, उनकी माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं. आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ वीडियो, और उसमें वो ये एक एंकर जो है वो डिफरेंट लोगों से जो है वो इंटरव्यू कर रहा था, और वो जिससे ये पूछ रहा था कि व्हाई यू हेट द क्रिश्चियनिटी, या व्हाई आप लोगों से क्यों नफरत करते हैं. तो लोगों का, बहुत ज्यादा लोगों का यही आंसर था, पता नहीं, पता नहीं, मतलब रीजन इनको भी नहीं पता. सो हम अपने बच्चों के माइंडसेट इस तरह से बना देते हैं कि दो, नो नो ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये हमारे साथ नहीं चल सकते, इनको काफिर का लकब दे दिया जाता है. तो ये इस तरह ये चीजें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए. और खास तौर पे जो बड़े लोग हैं, जो मिच्योर लोग हैं, उनके ऊपर तो हम वर्किंग नहीं कर सकते बिकॉज दे आर मिच्योर इनफ, और वो बन गए हैं जो उन्होंने बनना है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, यू हैव टू वर्क ऑन द प्री स्कूल. आपको छोटे बच्चों पे काम करना है. छोटे बच्चों का आप एग्जैक्टली। माइंड सेट जैसा बनाएंगे वैसा ही उनका जो है वो बनता जाएगा. और अगर उसमें कहीं पे कोई ऐसी चीज आती है जहाँ पे पेरेंट्स, बच्चे जो है पेरेंट्स से भी क्वेश्चन करने शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है वो टीचर को भी उतना ही ट्रेन होना जरूरी है कि वो भी किसी तरह की जो है वो बाइसनेस रखे बगैर जो है वो चीजों को प्रमोट करे. बच्चों को बताएं दैट वी आर ह्यूमन, यार हमें ह्यूमैनिटी, वी हैव द ह्यूमैनिटी इन बोन. हम जो है वो इंसान है और हमें इंसानों को इंसानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए. अगर कोई हमें मारता है तो हमें पेन होती है, तो इट्स मीन कि अगर दूसरे को भी मारेगा तो उसको भी उतनी ही पेन होगी. सो एक तो कुछ तो ये चीजें थी जो मैं बताना चाह रही थी. दूसरा ये है कि इंक्लूसिव करिकुलम डिजाइन होना चाहिए. देन पीस एंड एथिक एजुकेशन. एथिक एजुकेशन अगर हम देते हैं तो जितने भी रिलीजन्स देखें, जितनी भी डिवाइन बुक्स देखें, उनका एक ही मेन चीज है 10 कमांडमेंट्स. हर एक जगह पे वो सेम है. चोरी हर एक मजहब में मना है,
आपका झूठ ये मना है। मतलब जितने भी मेजर आपके 10 कमांडमेंट्स के अंदर चीजें आती हैं, दैट आर द बेसिकली एथिकल वैल्यूज जो कि आपको बेस से दी जाती हैं, और हर एक मजहब का यही हिस्सा है। सो न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी के लिए जो है वो एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, ये होना चाहिए। फिर टीचर के लिए प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, हाउ टू डिलीवर द लेसन्स, हाउ टू डिलीवर द थिंग्स, और हाउ टू डिलीवर द सेंसिटिव, इवन सेंसिटिव टॉपिक्स। आपको सेंसिटिव टॉपिक्स को किस तरह से जो है वो डिलीवर करना है, एंड हाउ टू बैलेंस विद द फेयरनेस। आपको बैलेंस कैसे करना है, फेयरनेस के साथ किस तरह से आपने उनको बैलेंस करना है। सो टीचर शुड बी इनफ ट्रेन फॉर दैट। इसी तरह से स्टूडेंट वॉइसेस, हम जो है वो बच्चे अगर कोई बात एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं किसी भी चीज के हवाले से, तो हम उनको स्नब कर देते हैं। उसी उसी वक्त हम कह देते हैं कि नो, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट दिस, दिस इज नॉट द थिंग, और मतलब ये अभी आपकी एज नहीं है। बच्चों को हम वो क्वेश्चन करने ही नहीं देते, या हम ये कह देते हैं कि एज अ मुस्लिम हम बच्चों को ये बता देते हैं कि जी हम इस पे बात नहीं कर सकते, हम इस चीज को नहीं छेड़ सकते, हम इसको नहीं लर्न कर सकते, तो हम वहीं पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मेन थिंग है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके आए, और प्री स्कूल के ऊपर काम करें, प्री स्कूल टीचर्स और प्री स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। उसके बाद आपका प्राइमरी सेक्शन आता है, तो प्राइमरी के अंदर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बच्चे जो है वो आपके सीख रहे होते हैं चीजों को। तो जब हम स्टार्ट से ही उनकी ट्रेनिंग इस तरह से करेंगे कि दे हैव टू बी टॉलरेट, और दूसरों को जो है वो एक्सेप्ट करें, और जो है वो जिस तरह से किसी का रिलीजन उनको परमिशन दे रहा है अपनी इबादत करने की, उनके ऊपर जो है वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस ना मत करें। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो देख रही थी, वो यरूशलेम के अंदर जो है वो इसका रिजरेक्शन डे का जो चीजें हो रही थी, तो लोगों ने उसको कह दिया कि मिसालें जला के तो यहूदी जो है वो उसके अंदर आ गए हैं मस्जिद अक्सा में। तो मतलब दैट वाज अ बैड थिंग कि आप जो है वो नाटक खिला रहे हैं, आप गलत जो है वो चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो मीडिया शुड बी कंट्रोल्ड, मीडिया को कंट्रोल्ड होना बहुत जरूरी है। कोई भी आग मिस लगाने के लिए आपको जो है ना मीडिया बहुत जो है वो बुरा रोल प्ले करता है, और आग बुझाने के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। जी। आप जो है वो अभी बात कर रही हैं रेजरेक्शन डे की सेलिब्रेशन की, जो कि होली सेपलेकर चर्च में हुआ। आप उसको तो छोड़ दें, अभी रिसेंटली पापा फ्रांसिस पास्ड अवे, और हमारे जितना जो प्रिंट मीडिया था, न्यूज चैनल्स थे, उन सब ने जो है वो खबर चलाई कि रोमन कैथोलिक कलीसिया के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। वो वीडियो जो है वो फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा चली। आप सिर्फ जाके उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ें, जी, मींस दैट इज के द द पेन डे थिंग। ही पास्ड अवे, और मैंने खोला फोन, आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल, और मुझे पता लगा कि जी ही पास्ड अवे। हमने सबसे पहले तो दुआ की, उसके बाद लाइक फॉरवर्डेड द मैसेज कि जी ये हो गया। क्योंकि जब अनटिल एंड अनलेस वेटिकन कंफर्म नहीं करता, तो हम किसी भी चीज को आगे ना परस्यू नहीं कर सकते। वहां से नोटिफिकेशन आ गया जी हो गया। उसके थोड़ी देर बाद ही जो है वो न्यूज चैनल्स ने भी देना शुरू। मैंने फेसबुक खोला और न्यूज चैनल के रिपोर्ट्स आ रहे थे, और उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ के आई वाज लाइक दिस, कि इतना हेट, इतना ही, मींस कि आपके दिल में बुग़्ज़ है कि एक बंदा जो कि एक मजहबी रहनुमा है, एंड ही इज द वन हु वाज नॉट प्रमोटिंग द वॉर, ही वाज प्रमोटिंग द पीस, और हाँ, द वन इवन हु he कंडेमनिंग talked द about, पैलेस्टीनियन एंड इजराइलियन yes, एक्ट कि जो चीज नहीं होनी चाहिए वो गलत है, कि मजहब ये नहीं सिखाता कि हम किसी का खून बहाएं, कुछ भी करें। ठीक है, ही वॉज द वन हु वॉज कंडेमनिंग इट। और जो इसराइल के खिलाफ खड़ा होकर बंदा बात कर रहा है, आप उसके बारे में चलें, उसको छोड़ दें। ये देख आपके मफाद बात कर रहा है। आपने उस बारे में भी ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे हैं जो कि लाइक अल्लाह करे। ठीक है, मीन्स के हमारे जिन रिलीजियस लीडर्स को खड़े होकर उन चीजों को कंडेम करना चाहिए था, वो कंडेम नहीं कर रहे। जी सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनको ये एक्ट जो है इजराइलियन एक्ट को कंडेम करना चाहिए था, वो कंडेम नहीं कर रहे। कोई और रिलीजियस बंदा उनको कंडेम कर रहा है, और हम उसको बातें सुना रहे हैं। और लाइक
ठीक है, until and unless he was alive आप कर सकते थे। the time when person passed away, वो मर जाता है, उसके बाद उसकी सारी चीजें छोड़कर उसके लिए सिर्फ दुआ करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो बट एंड लाइक इसी चीज बस को मैं इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि अगर जब हमने स्कूल की बात कर ली, तो अब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं, तो हमें इंटरफेयर डायलॉग और इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज कराने जरूरी है। पीस क्लब्स का कायम होना बिल्कुल जरूरी है, डाइवर्सिटी काउंसिल्स बनानी चाहिए, और इंक्लूसिव एडमिशन एंड स्कॉलरशिप्स देने चाहिए। और फिर इसके साथ हमें ह्यूमैनिटी डेज जो है वो सेलिब्रेट करने जरूरी है। अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं या एनजीओ की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी बेस्ड वर्कशॉप्स होना जरूरी है। जैसे कि मिस नताशा ने कहा कि हम इन्वॉल्व ही नहीं करते चर्चिस को, और सम टाइम हम चर्चिस को तो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मस्जिद को या मदरसे को हमने इन्वॉल्व किया हो। उनको भी इन्वॉल्व करना उतना ही जरूरी है। जो है वो हमारी बिल्कुल ब्रिज बिल्डिंग कैंपेन्स होनी चाहिए। कुछ लोगों को न्यूट्रल होके इन चीजों को लेके चलना जरूरी है, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। फिर इसके साथ एडवोकेसी और रिसर्च होना बहुत जरूरी है। कोई बात हो गई, कोई चीज हो गई, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको समझना, और उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉज क्या कहते हैं, उसके बारे में सोचना और समझना जरूरी है। फिर उसके बाद है कि आपको ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल्स जो है, एजुकेशन मॉडल्स को भी जो है चेंज करने की जरूरत है। डिफरेंट मॉडल्स देना जो है वो बहुत जरूरी है, जिससे जो है वो हमारी एजुकेशन जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो उसको प्रमोट हम कर सकते हैं और उसकी रूह को समझ सकते हैं। इसी तरह से जो है वो वी हैव टू प्रमोट इंक्लूसिव नैरेटिव्स, देन हाईलाइट पीस रोल मॉडल्स। पीस रोल मॉडल्स जो है वो ही होना जरूरी है। मैं अपना बताऊं, मुझे 2021 में जो है वो इसका सिल्वर लेडी का खिताब मिला इंटरफेथ हार्मनी पे काम वर्किंग के लिए। तो उसकी जो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो है वो मिनिस्टर की तरफ से एक प्राइज मिला, और मुझे उस अवार्ड से जो है वो नवाजा गया। तो व्हेन आई वाज रिसीविंग द अवार्ड, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, तनकीद भी किया कि आपको किस बात पे मिला। मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, रिसर्च करो, मेरे पेज पे जाओ, देखो मैंने क्या किया। इंटरफेथ के लिए मैंने क्या किया, मैंने पीस के लिए कितना काम किया, तो मेरी वर्किंग के ऊपर वो चीजें हैं। तो ये है कि आपको लोगों की माइंडसेट जो है वो चेंज करने बहुत जरूरी है। रिलीजियस लीडर्स को अगर जैसे हमने उनको उनकी बात की, तो उनको भी जो है वो पीस की एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, उनको बताना जरूरी है। और जॉइंट कम्युनिटी सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है। ये चीजें हैं जो कि हमारे ना जो है ना वो चीजों को चेंज कर सकती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट करिकुलम, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ माइंडसेट where every child, regardless of background, learns that peace, respect, and humanity are the highest values. I think. Yes, I think Mr. Sashka? yes, thank you so जी much, जी। both Mr. Ibrahim and yeah, Dr. Tahira and Dr. Ibrahim. I think बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना बहुत ज़रूरी है। पीसफुल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर जो टीचिंग है, आई मीन जो अवेयरनेस और एजुकेशन रिलीजियस लीडर की है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारी जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन आ रही है, सिलेबस से रिलेटेड जितना भी डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, उसको करना बहुत ज़रूरी है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। फिर ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है एजुकेशन का, जो पॉलिसी लेवल डायरेक्टिव चाहिए हमें कि हम डिफरेंट रिलीजन्स को किस तरह से प्रमोट करें, उनकी एक्सेप्टेंस और उसकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस करने के लिए हम किस तरह के मैकेनिज्म अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेकर आए। फिर जितनी ज़्यादा हम जो है माइंडसेट चेंज करने की बात, कि वो माइंडसेट ही जब तक चेंज होगा जब हमारे पास पॉलिसी लेवल के डायरेक्टिव्स होंगे, हमारे पास वो चीजें होंगी। फिर इस सारी चीज में जो मीडिया का रोल आपने बताया है कि दैट इज नीडेड वेरी हाई। और फिर अभी जो पोप फ्रांसिस का, आई मीन वी ऑल आर mourning on his death because he was the one who was a very peaceful leader, and he talk about peace, he talk about the Palestine issue, he talks about the refugees issue. He was a very genuine kind of the leader living in a very small
small apartment and always talk about the poor people. जिससे हमारी अभी जो एक्रे बिशप हैं जोसेफ अर्शद साहब, उनसे भी बात हो रही थी, ही वॉज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग अ लॉट अबाउट हिम। तो इस तरह के रिलीजियस लीडर के बारे में जो अगर इस तरह की कोई कमेंटिंग हो रही है, एंड दैट इज समथिंग दैट्स नीड टू बी कंडेम्ड, बिकॉज हम हर रिलीजन हम यही चाह रहे हैं। the interfaith harmony, it's not only the issue in Pakistan, it's currently it's the challenge in the globally as well, because the global level के ऊपर भी Exactly. जिस लेवल की बायसनेस है, जिस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन है, जिस लेवल का रेसिज्म है, जिस लेवल का प्रेजुडिस है, वी नीड टू ओवरकम दैट। और ये हमें हर लेवल के ऊपर इस चीज के ऊपर सोचना है, हमने हर लेवल के ऊपर इसके ऊपर जाके बात करनी है, हमने हर लेवल के ऊपर इसको एड्रेस करना है। सो एफर्ट नीडेड एट ऑल लेवल। आई मीन इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम यहाँ पर पाकिस्तान इज फेसिंग इज दैट, बस द इंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग दिस इशू। बट पाकिस्तान में थोड़ा हाई है, बिकॉज जब ये कंट्री बना था, सो बेसिकली जो विजन कायदे आजम था, ही वॉज द वन लीडर हु टॉक्स अ लॉट अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस इंटरफेथ हार्मनी। बट द थिंग इज कि उसके बाद हमने जो लीडर्स हैं बड़े कम देखे हैं जो इन चीज़ों के ऊपर बात करें, या जो इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, या जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉलिसी लेवल के डायरेक्टिव जो हमारी फेथ बेस्ड बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको लीडिंग रोल में लेकर आए। व्हेन वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट वेबिनार सेशन, तारिक महमूद गौरी हैं जो हमारी हम साथ कमीशन कम्युनिटी से हैं, नेशनल कमीशन पीस ऑफ जस्टिस में भी हैं, he was also mentioning when Qaid Azam was there was the cabinet which was full of the different faith-based community, where was the Hindu leader, where was the Christian leader, at that time we have the Christian army chiefs as well. So those were the time जिन्होंने curriculum भी design करना था, he was the Hindu who wanted to design the curriculum. So there was a lot of acceptance for the different faith-based community, and that is what, because right now the faith-based communities are having lots of differences related to electoral rights। अहमदी community को बड़ा उसमें challenges हैं। there are the other हमारी पार्लियामेंट में उस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं है माइनॉरिटी की कि जितनी ज़्यादा होनी चाहिए। रिस्पेक्टेबल जॉब्स नहीं है हमारी फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ के लिए कि उनको अच्छे ओहदों के ऊपर उनको अच्छी जॉब्स मिलें, कि there should be the more and more quota should be available for the different faith-based communities। education में उनके लिए scholarships होने चाहिए। There should be the lots of opportunities so they can come forward, they can come forward and take lead, and they can also give the different perspective, and they will talk about the piece. So there should be the lots of acceptance at the different religion level. So it is not only that the accept from the one majority, but it's all about to creating a balance that that's the kind of universe that created the God. It is basically a diverse universe, and everybody is different. Even in the home, there, like Dr. Taira was mentioning, that the sister brothers are different. So this is the world, and we are the sister brothers. Whatsoever religion we do have, we are the sister brothers. So we have to accept each other. So in every country there are the different norms in the culture, but the thing is that we have to accept those diversity and we have to celebrate it, and that is what we wanted to ensure in our homes, we wanted to ensure in our education institution, we wanted to ensure in any institution in the society. So this is the whole movement behind the Action for Impact project related to the parenting matter, tolerant society, interfaith harmony. It's not on the parenting, but the society as a whole needs to work on it. So I'm very thankful to both of my panelists. अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, so if any message you both of you wanted to give the entire community through this webinar session, because मैं इसका press release भी बनाऊंगी, we will issue in the press as well, and later on we will be having discussion with the different because हमारा अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट में, अगले में हम सिर्फ अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करेंगे, जो इश्यूज हम हाईलाइट करने हैं हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, हम एडवोकेसी मीटिंग्स करेंगे, हम पॉलिसी लेवल के डायरेक्टिव्स पे बात करेंगे। So we will fully engage you, all of you, in those project activities के हम ये चाहेंगे कि हमारे पास फंड्स हैं नहीं हैं, बट हम अपने वॉलंटियरिज्म के तौर पर ये जो हमारी पूरी मूवमेंट है कि हम इसको कैसे आगे लेकर चलें। सो वहाँ पर आप लोगों का रोल बड़ा ज़रूरी होगा, एंड आई विल इनवाइट यू ऑल। सो प्लीज़ गिव वन मैसेज एंड देन वी एंड आवर वेबिनार सेशन। ओके, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ इस तरह से कि आपने जो बात की कि कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान को बनाया
तो उस वक्त उन्होंने माइनॉरिटीज के हक में बहुत सारी बातें की। मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, तो मुझे ये फील हुआ और मैंने पढ़ा जब, तो उस वक्त मैंने इसको एनालाइज किया कि कायदिज्म एट दैट टाइम मुस्लिम वर इन द माइनॉरिटी, मतलब दो उसमें ये था कि एक अंग्रेज थे और दूसरे हिंदू थे, बट मुस्लिम वर इन माइनॉरिटी, सो दैट्स व्हाई कायदे आज़म को वो पेन महसूस थी हुई थी कि उनको किस किस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम्स आई। दैट्स व्हाई उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारी चीजें जो वो कही। लेटर ऑन चीजें चेंज होती रही और जो वो चीजों को लोग भूलते चले गए। सो यहाँ पर जो मैसेज है ना, मेरा आज का मैसेज यही है कि हमें जो है वो मिलजुल के जो वो एक चीजों को जो वो लेके चलने की जरूरत है। और उसमें सिंपल ये है कि वी आर डिफरेंट येट डीपली कनेक्टेड। हम डिफरेंट तो हैं लेकिन डीपली कनेक्टेड हैं। हम हमसाए हैं, हम एक दूसरे के दुख में दर्द में आते हैं, तो हम जो है वो डीपली कनेक्टेड हैं। आवर बिलीव्स मे वेरी, our languages and rituals may not be the same, but the core of every faith lies a common thread that are the compassion, justice, and call to serve humanity. Let's remember that peace is not passive, it's built together. Harmony is not the absence of differences, it is the celebration of them. And humanity comes first always. So this is my message, that together let's raise a generation that doesn't just tolerate differences but embraces them. Thank you. जी डॉक्टर इब्राहिम। The last message I would like to give, it's let us strive for mutual respect, understanding, and peace. May our differences become a source of strength and richness rather than division. Let us work together to promote tolerance, empathy, and compassion, and build a world where everyone can live with dignity and respect. As Qaid Azam on the 11th August, he said, everyone is born free and he has a right to go to his temple, churches, everywhere to his like religion places. और हम अगर बात करें कायदे आजम की फर्स्ट कैबिनेट की, तो आपने जैसे कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में जो है कायदे आजम के मोस्टली जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से मेंबर्स थे। मिस ने जो बात की कि कायदे आजम मोहम्मद अली जना व्हेन ही वाज इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान बनाने का सोच रहे थे, तो पाकिस्तान बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था कि उनको वहां पे जो माइनॉरिटीज के साथ, बीइंग इस्लामिक माइनॉरिटी उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में, जो इस्लामिक हमारे जितने भी मुस्लिम बहन भाई थे उनको जो चीजें फेस करनी पड़ रही थी, उन्होंने उस चीज को नोटिस करते हुए एक अलग मुल्क की बुनियाद रखी। अब वही मुल्क जिसने वो सारी, वही लोग जिन्होंने ये सारी तकलीफें उस मुल्क में बर्दाश्त की, अपना अलग मुल्क जैसे ही उनको मिला, उन्होंने आते सर वही चीजें दूसरों के साथ करना शुरू कर दी। आपने हमें सारी ये ली चीज थोड़ी देर मीन्स के थोड़ी देर सब्र कर जाए। हम अभी आई वाज जस्ट लाइक गोइंग थ्रू लेटर सम ऑन। स्टफ। 1959 में जो हमारे जो नेशनल हॉलीडेज का जो कैलेंडर आता था ना 59 में, 1959 तक जो हमारा नेशनल हॉलीडेज का कैलेंडर जो था, उसमें हमारी दिवाली की भी छुट्टी थी, उसमें होली की भी छुट्टी थी, उसमें सिख कम्युनिटी के लिए वैसाखी की छुट्टी भी या थी, और जो हमारी उसे क्या कहते हैं, जो गंदम की कटाई की जो छुट्टी होती है वो भी थी, ताकि क्योंकि द सिख कम्युनिटी सेलिब्रेट दैट। हाँ ताकि ठीक है। हाँ, तो सिख कम्युनिटी सेलिब्रेट दैट फेस्टिवल, तो ये छुट्टियां भी थी। पता नहीं 1960 में हमें क्या हुआ कि हमने ओवरऑल छुट्टियां जो है वो खत्म करके सिर्फ जो है चंद लिमिटेड छुट्टियां कर दी हैं। उन छुट्टियों का मकसद लीडर ये नहीं वाज था कि चेंज। हमने छुट्टियां, हाँ, हम छुट्टियां, ये मकसद नहीं था उनका कि हमने छुट्टियां दी हैं तो जी लोग उस छुट्टियों को एंजॉय करें। उसका सिर्फ मकसद ये था उन छुट्टियों का कि लोगों को डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स का भी पता लगे कि आज कौन सा फेस्टिवल है। अब बीइंग हम जिस खित्ते में बैठे हुए हैं, पंजाब,
पंजाब अगर देखा जाए तो पंजाब जो है दैट वाज द हार्ट ऑफ सिख कम्युनिटी। सिखिज्म का दिल था, हार्ट। आपका तख्त लाहौर, आपका तख्त गुजरांवाला, राजा रंजीत सिंह की गद्दी नशीनी, ये सारा दैट वाज लाइक अ हार्ट ऑफ सिखिज्म। अब हमने अपने पंजाब में ही वो कल्चर खत्म कर दिया है। हम दूसरी सूबों को क्या कहें? हम अपने पंजाब में तो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं ना स्टार्टिंग में, कि हम उन चीजों को रिवाइव करें दोबारा से। तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस जरताशा कि आप जब भी कभी किसी बड़े ओहदेदारान से मिलें तो उनको ये रिक्वेस्ट लाजमी करें कि हमारी जितनी जनरल हॉलीडेज थी उनके साथ हमारी जो रिलीजियस हॉलीडेज जो हमने खत्म कर दी हुई हैं उनको भी दोबारा रिवाइव करें, ताकि हमारी बाकी कम्युनिटीज या बाकी सोसाइटी को भी पता लगे कि हम जो है वो दूसरे मजाहब की खुशियों में शामिल होने के लिए बिल्कुल खड़े हैं और उनके साथ जो है ये खुशियां मनाने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। Thank you so much with all this. Thank you so much, both of our panel speaker, for your time, especially on the Saturday, because we every Saturday we are organizing this, and we would highly appreciate if you recommend us more speaker, because every Saturday we are highlighting some issue. But it's not only limited here. We are also having more and more discussions on it. We are going to organize interfaith dialogue. We are also going to meet the different stakeholders as well. So we are not only talking, but we actually do that things because we are carrying on this mission. So hopefully the things we are talking about, we will bring into the action at the policy level, hopefully. And we would like to have the support all of the people like you. So and that is something that is really needed at this time. So I'm really thankful for your time, and inshallah we'll connect you in other more meetings as well. So with all this, thank you so much and God bless you. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।